Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength, and hope with each other that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism. The only requirement for membership is a desire to stop drinking. There are no dues or fees for AA membership. We are self-supporting through our own contributions. AA is not allied with any sect, denomination, politics, organization, or institution, does not wish to engage in any controversy, neither endorses nor opposes any causes. Our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदू है और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा और AA की मदद से आज के पहले घातक घोट। दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप की ऑनलाइन AA मीटिंग में, जो हर शुक्रवार को हम 9 से 10:30 बजे मिलते हैं और करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं ट्रेडिशन 6 पे। An AA group never endorse, finance or lend the AA name to any related facility or outside enterprise. Lest problems of money and property and prestige divert us from our primary purpose. The moment we saw that we had an answer for alcoholism, it was reasonable, or it seemed at that time for us, to the feeling that we might have an answer to a lot of other things. The AA groups, many thought, could go into business, might finance any enterprise, whatever, in the total field of alcoholism. In fact, we felt duty bound to throw the whole weight of the AA name behind any meritorious cause. Here are some of the things we dreamed. Hospitals didn't like alcoholics, so we thought we'd build a hospital chain of our own. People need to be told what alcoholism was, so we would educate the public, even rewrite school and medical textbooks. We'd gather up derelicts from skid rows, sort out those who could get well, and make it possible for the rest to earn their livelihood in a kind of quarantined confinement. Maybe these places would make large sums of money to carry on our other good works. We seriously thought of rewriting the laws of the land and having it declared that alcoholics are sick people. No more would they be jailed. Judges would parole them in our custody. We'd spill AA into the dark regions of dope addiction and criminality. We'd form groups of depressive and paranoid folks. The deeper the neurosis, the better we would like it. It stood to reason that if alcoholism could be licked, so could any problem. It occurred to us that we could take what we had into the factories and cause laborers and capitalists to love each other. Our uncompromising honesty might soon clean up politics. With one arm around the shoulder of religion and the other around the shoulder of medicine, we would resolve their differences. Having learned to live so happily, we'd show everybody else how. Why we thought our Society of Alcoholics Anonymous might prove to be the spearhead of a new spiritual advance. We might transform the world. Yes, we of AA did dream those dreams. How natural that was, since alcoholics are bankrupt idealists. Nearly every one of us had wished to do great good, perform great deeds, and embody great ideals. We are all perfectionists who, failing perfection, have gone to other extreme and settled for the bottle and the blackout. Providence through AA had brought us within reach of our highest expectations. So why shouldn't we share our way of life with everyone? Over to you, Lucky ji. Continue karo, because it is in continuation, the next para. Okay. Whereupon we tried AA hospitals. They all bogged down because you cannot put an AA group into business. Too many busybody cooks spoil the broth. AA groups had their fling at education, and when they began to publicly whoop up the merits of this or that brand,
People became confused. Did A fix drunk, or was it an educational project? Was A spiritual, or was it medical? Was it a reform movement? In constant consternation, consternation, we saw ourselves getting married to all kinds of enterprises, some good and some not so good. Watching alcoholics committed willy nilly to prisons or asylums, we began to cry. There ought to be law. A's commenced to thump tables in legislative committee rooms and agitated for legal reform. That made good newspaper copy, but little else. We saw we'd soon be mired in politics. Even inside A, we found it imperative to remove the A name from clubs and the 12-step houses. These adventures implanted Vishnu, I think you can stop it. Okay. Over to you, Lucky. Lucky ji, you are on mute. हाँ, now I am unmuted. Yeah, हाय फ्रेंड्स, मैं बोला चंदू छोटा सा ट्रेडिशन है, ज्यादा पड़ेगा तो खत्म ही हो जाएगा. मैं इसीलिए लेकिन एनीवे yeah. ट्रेडिशन 6, जहाँ पे हम किसी भी ए समूह ने कभी भी किसी बाहरी संस्था या उद्यम का समर्थन नहीं करना चाहिए, न ही उसे फाइनेंस और लेंड दी ए नेम टू एनी रिलेटेड फैसिलिटी, पैसे की मदद करनी चाहिए या व्यवहार करना चाहिए पैसे का, न ही उसे अपना नाम उसे देना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो कि धन संपत्ति और प्रतिष्ठा के मुद्दे हमें अपने मूल उद्देश्य से भटका दे. अब ट्रेडिशन 6 की शुरुआत में बिल लिखता है कि द मोमेंट वी सॉ दैट, कि उन्हें शराबीपन का जवाब मिल गया, जैसे ही हमें यह दिखने लगा कि हमारे पास अल्कोहलिज्म का उत्तर है, तो यह स्वाभाविक था, या उस समय ऐसा हमें लगा कि शायद बहुत सी दूसरी समस्याओं का उत्तर भी हमारे पास हो सकता है. यानी कि एक जगह से मिली हुई सक्सेस ये विश्वास दिला रही थी कि और जगह पे भी हम काम कर सकते. कई लोगों ने सोचा, यानी कि जो पुराने उस वक्त के मेंबर थे, कि ए समूह व्यापार में उतर सकते हैं, अल्कोहलिज्म से जुड़े किसी भी क्षेत्र में किसी भी उद्यम को सहायता दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं. वास्तव में हमें ऐसा कर्तव्य भी महसूस हुआ कि किसी भी नेक उद्देश्य के समर्थन में ए के पूरे नाम और वजन को लगा देना चाहिए, क्योंकि संख्या काफी हो गई थी. अगले पैरा में बिल लिखता है कि हम जिन चीजों के सपने देखने लगे थे, अभी अपने सपनों का विवरण कर रहा है. अस्पताल शराबियों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि बार बार पी के आते थे इसकी वजह से, और कोई मदद स्वीकार नहीं करता था शराबी. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी खुद की अस्पतालों की एक श्रृंखला शुरू करें. लोगों को बताने की जरूरत थी कि अल्कोहलिज्म क्या है. तो हम जनता को शिक्षित करेंगे, यहां तक कि स्कूल और मेडिकल की किताबें भी दोबारा लिख डालेंगे, यानी कि अल्कोहलिज्म के बारे में दुनिया को बताएंगे. तीसरा, हम स्किड रो, यानी कि जो बहुत ही नीचे गिर पड़े हैं, ऐसे लाचार शराबियों को इकट्ठा करेंगे, उनमें से जो ठीक हो सकते हैं उन्हें अलग करेंगे, और बाकी लोगों के लिए ऐसा इंतजाम करेंगे कि एक तरह के सुरक्षित अलगाव में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा सके. शायद ये संस्था इतना पैसा कमाए, यानी कि ये जो 4 बिल ने वर्णन किए, कि हमारी दूसरी महान गतिविधियां भी सहजता से चल सकें. हमने गंभीरता से सोचा कि देश के कानून को बदलना चाहिए और ये घोषित करवाना चाहिए कि शराबी असल में बीमार लोग हैं. अब उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, जज उन्हें हमारी निगरानी में पैरोल पर छोड़ देंगे. हमने तय किया कि ए का काम नशे की अंधेरी दुनिया और अपराध के क्षेत्रों में भी फैलाएंगे. हम उदास यानी कि डिप्रेसिव और भयग्रस्त यानी कि पैरानॉइड लोगों के समूह बनाएंगे.
और जितनी गहरी उनकी मानसिक उलझनें होंगी, हमें उतना अच्छा लगेगा, उतना अच्छा इलाज करेंगे। हमारी तर्क शक्ति यह कहती थी कि अगर अल्कोहलिज्म को हराया जा सकता है तो कोई भी समस्या हराई जा सकती है। ये उस वक्त के लोगों की मनस्थिति का बिल ने वर्णन किया। आगे लिखता है कि हमें यह भी सूझा, अब ख्याल और आगे बढ़ रहे हैं, कि हम जो कुछ भी सीखे हैं उसे कारखानों में ले जाएं और मजदूरों तथा पूंजी यानी के उद्योगपतियों को एक दूसरे से प्रेम करना सिखाएं। हमारी अडिग ईमानदारी शायद राजनीति को भी जल्दी ही शुद्ध कर दे। धर्म के एक कंधे पर एक हाथ और चिकित्सा शास्त्र मेडिकल फील्ड के कंधे पे दूसरा हाथ रखकर हम उनके मतभेद भी दूर कर दें। जब हम खुद इतनी खुशी से जीना सीख चुके थे तो हम यह सब दुनिया को भी सिखा सकते थे। क्यों नहीं हमने सोचा, हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सोसाइटी एक नए आध्यात्मिक जागरण का अग्रदूत बन सकती है। हम शायद पूरी दुनिया को बदल दें। हाँ, ये सपने देखे गए थे। उस वक्त के लोगों ने सचमुच ऐसे ही सपने देखे थे और यह कितना स्वाभाविक था, क्योंकि अधिकांश शराबी बैंकरप्ट आइडियलिस्ट यानी कि दीवालखोर आदर्शवादी होते हैं, ऐसे आदर्श जिनके दिवालिया निकल चुका होता है। हम में से लगभग हर कोई कभी महान भलाई का काम करना चाहता था, बड़े बड़े काम करना चाहता था और ऊंचे आदर्शों से जीना चाहता था। हम सब परफेक्शनिस्ट पूर्णतावादी हैं और जब पूर्णता हासिल न हो सकी तो हम दूसरे छोर पर चले गए, शराब और बेहोशी के अंधेरे में। ईश्वरीय कृपा के माध्यम से हमें एक बार फिर अपना सर्वोच्च आकांक्षाओं को पहुंचने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई, भीतर लाकर खड़ा किया था। तो फिर हमने सोचा, हम अपनी नई जीवन शैली सबके साथ क्यों ना बांटे, ये जो हमें मिली है शराब से मुक्ति की। तब हमने ये अस्पतालों की कोशिश की, यानी कि ये जो सब ख्याल, ये जो सब विचार आए थे, शराबीपन से छुटकारा पाके जो सफलता प्राप्त हुई थी, वो सफलता के बल पर उन पुराने शराबियों ने ऐसे सपने देखने शुरू किए थे कि अगर शराबीपन को हराया जा सकता है तो किसी भी चीज को हराया जा सकता है, तो ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। तब ये अस्पतालों की कोशिश की, लेकिन वो सब ठप पड़ गए। अब यहाँ पे अनुभव आ गया, क्योंकि आप किसी ए समूह को व्यापार में नहीं डाल सकते। बहुत से दखल देने वाले रसोइये मिलकर किसी भी सूप को बिगाड़ देते हैं। टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रोथ। ए समूह ने शिक्षा के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और जब उन्होंने इस या उस ब्रांड की खूबियों का सार्वजनिक ढंग से प्रचार शुरू किया तो लोग उलझन में पड़ गए। आखिर ये शराबियों को ठीक करता है या यह कोई शैक्षणिक संस्था है? क्या ये एक आध्यात्मिक कार्यक्रम है या एक चिकित्सक परियोजना? क्या यह कोई सुधार आंदोलन है? क्या इतने सारे अलग अलग विचार लोगों के दिमाग में आने लगे क्योंकि हमने ये प्रयत्न शुरू कर दिए थे। घबराहट में हमने देखा कि हम तरह तरह के उद्यमों से शादी कर रहे थे, कुछ अच्छे और कुछ उतने अच्छे नहीं। शराबियों को अंधाधुंध जेलों और पागल खानों में भेजते देखते हुए हमने चिल्लाना शुरू किया, इसके लिए कानून होना चाहिए। ये सदस्यों ने विधानसभाओं की समिति कमरों में मेजें थपथपानी शुरू कर दी और कानूनी सुधार की मांग उठाई। अखबार में इसकी खूब खबरें छपी, पर इससे हासिल कुछ नहीं हुआ। हमें समझ आ गया था कि हम जल्दी ही राजनीति के कीचड़ में फंस जाएंगे और यहां तक कि ए के भीतर भी हमें यह अत्यावश्यक लगा कि क्लब और 12 स्टेप घरों से ए का नाम हटा दिया जाना चाहिए। तो
यहां तक जो चंदू ने पढ़ा अंग्रेजी में, उसमें बिल ने ई के शराबीपन से मुक्ति का सफलता, और थोड़ी सी सफलता मिलने पे हम जैसे दिवालखोर आदर्शवादी फिर बहुत सपने देखने लग पड़ते हैं, ये भी होना चाहिए। अति उत्साही लोग हैं ना, या तो एक छोर पे या तो दूसरे छोर पे। हमने वो सपने देखे, उनकी गिनती आपने देखी होगी कितनी लंबी चौड़ी थी, और उनमें से फिर कुछ काम किए भी गए। ऐसा नहीं कि हम सपने देखते हैं, हम आतुर और उत्सुक होते हैं, हम कुछ एक्शन भी कर देते हैं। और वो एक्शन करने के बाद में जब समस्याओं का बाढ़ लग गई, जब ऐसा लोगों के पास ये संदेश गलत फहमी होने लगी कि ये आखिर है क्या, जो आखिरी के पैरा में बिल ने वर्णन किया। और तभी जाकर के वो कहता है कि हमें अत्यावश्यक लगा कि क्लबों और 12 स्टेप घरों, पहले ए क्लब्स होते थे, 12 स्टेप हाउस होते थे, हाफवे होम्स होते थे, उनके पास से भी ए का नाम हटा दिया जाए। ओवर टू यू पुष्कर। थैंक यू लक्की। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम भूषण है, मैं एक शराबी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आज आप सब लोगों के बीच में ट्रेडिशन 6 को डिस्कस करते हुए। तो सबसे पहले ट्रेडिशन 6 कहता है एन AA group ought never endorse, finance or lend the AA name to any related facility or outside enterprise। यानी किसी भी AA के समूह ने कोई भी कार्य हो, उसको जो भले शराबियत से जुड़ा हुआ हो, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, या AA का नाम तक ऐसे किसी व्यवसाय को देना नहीं चाहिए। लेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ मनी, प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज डाइवर्ट अस फ्रॉम आवर प्राइमरी पर्पस। यानी ये करने से 3 प्रकार की समस्याएं हो सकती है: पैसा, प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज यानी प्रसिद्धि। तो प्रेस्टीज यानी क्या कहते हैं, मान मरातब। तो ये इन चक्करों में हम अगर पड़ेंगे तो हम हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है, खुद शराब से दूर रहना और पीड़ित शराबी की मदद करना, उससे शायद दूर जा सकते हैं। तो ये है हमारा 6वीं परंपरा। इसी का लॉन्ग फॉर्म है जो नीचे दिया हुआ है। जो ओरिजिनल जो लॉन्ग फॉर्म वाली ट्रेडिशन थी वो रीड करती है, प्रॉब्लम्स ऑफ मनी, प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी मे इजीली डाइवर्ट अस फ्रॉम आवर प्राइमरी स्पिरिचुअल एम। पैसा, प्रॉपर्टी और ताकत, ये इश्यूज हमें आसानी से हमारे मूलभूत उद्देश्य से दूर कर सकते हैं। We think therefore that any considerable property of genuine use to AA should be separately incorporated and managed। इसीलिए हमें ऐसे लगता है कि जो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए जरूरी ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल या इमूवेबल, इट शुड बी सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड। यानी वो AA फेलोशिप का हिस्सा न होते हुए एक अलग से व्यवसाय करके उसको रजिस्टर करना होगा। दस डिवाइडिंग द मटेरियल फ्रॉम द स्पिरिचुअल। यानी जो मटेरियल यानी कि पैसा कमाना, पैसा खर्चा करना, व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है उसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अलग ही रहना होगा। An AA group as such should never go into business। किसी भी प्रकार के व्यवसाय में, धंधे में AA के समूह में नहीं जाना चाहिए। Secondary aids to AA such as clubs or hospitals which require much property or administration ought to be incorporated and so set apart। AA का कार्यक्रम चलते रहने के लिए, उसके मदद के लिए जो बाकी व्यवसाय बनते हैं जैसे क्लब्स या हॉस्पिटल्स,
इनके लिए पैसा लगता है, इनके लिए प्रॉपर्टी लगता है, इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, यानी अथॉरिटी आती है। ये सभी जो है वो बिजनेसेस करके सेपरेटली रजिस्टर करनी चाहिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का समूह कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन ये जो व्यवसाय है, ये व्यवसाय करके अलग से इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दे कैन बी फ्रीली डिस्कार्डेड बाय द ग्रुप्स। जब भी चाहे तभी एए के समूह ऐसे व्यवसायों को शुरू या बंद कर सकने चाहिए। हेंस सच फैसिलिटीज ought not use the AA name। इसके लिए ऐसे जो व्यवसाय है, इनके इनके नाम में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम नहीं होना चाहिए। Their management should be the sole responsibility of those people who financially support them। तो ये जो व्यवसाय है, इनका संचालन है, ये उन्हीं के हाथ में होना चाहिए जिनका आर्थिक सहयोग इस व्यवसाय में लगा हुआ हो। फॉर क्लब्स, AA मैनेजर्स आर यूजुअली प्रिफर्ड। जो AA के क्लब्स होते हैं, उसमें ज्यादातर AA के ही जो मेंबर्स है, जो आज शराब से दूर है, ऐसे ही लोगों को मैनेजर्स करके प्रिफर किया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल्स एज वेल एज अदर प्लेसेस ऑफ रिकपरेशन, वैसे ही और जो अन्य जगह है जहां पर शराबी को डिटॉक्सिफिकेशन या मद्य मुक्तता से बाहर निकालने का जो प्रयोग होता है, ought to be well outside AA। ये AA समूह की एक्टिविटी नहीं, ये AA से बाहरी, ऐसा भले हमारा एक दूसरे को सहकार्य रहेगा, लेकिन ये बाहरी व्यवसाय होना चाहिए। फॉर क्लब्स एंड मेडिकली सुपरवाइज्ड, तो ऐसे जो हॉस्पिटल्स है या प्राइमरी केयर सेंटर्स है, हेल्थ केयर सेंटर्स है, यहाँ पर डॉक्टर लोगों का होना उचित होगा। While an AA group may cooperate with anyone, such cooperation ought never go so far as affiliation or endorsement। यानी AA समूह ऐसे सभी व्यवसायों का सहयोग करेंगे, लेकिन कभी भी उनके साथ में जुड़कर पार्टनरशिप करके या उनका एंडोर्समेंट यानी किसी को यहां पर रेकमेंड नहीं करेंगे, यहां पर भेजेंगे नहीं। एक्चुअल और इम्प्लाइड, यानी एक्चुअल तो पार्टनरशिप दूर ही रहा, लेकिन लोगों को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि ये दोनों साथ में हैं, ये दोनों एक ही है। एंड AA ग्रुप कैन बाइंड इटसेल्फ टू नो वन। यानी AA का समूह किसी से भी जुड़ेगा नहीं। ओके, अब ये थोड़ा सा लंबा ट्रेडिशन है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें इतिहास जोड़ना चाहूंगा। अब कई सारे लोगों ने ये क्लब, AA क्लब, ये पहली दफा सुना होगा, या AA हॉस्पिटल्स ये पहली दफा ही सुना होगा। और इनकी मैनेजमेंट, इनका पैसा, इनकी प्रतिष्ठा, इनका प्रॉपर्टी, ये सभी जो विषय है, ये शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, देखना तो कोई दूर की बात है। तो थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं। जब भी AA सिर्फ छोटे गांव में था, एक्रोन जैसे गांव में था, तो हेनरिएटा साइबरलिंग जैसे कोई हमारे हितचिंतक थे, जिन्होंने वो अपनी एक जगह दी थी जहां AA की सदस्यता, यहाँ मीटिंग चलती थी। ऐसे ही कुछ जो AA के वेल विशर्स थे, हितचिंतक थे, ऐसे लोगों ने शुरुआत में जगह उपलब्धि करा के दी जहां पर AA की मीटिंग्स हो सके। कई बार ऐसी जगह उपलब्ध नहीं होने पर AA सदस्यों के घरों पर मीटिंग्स चलती थी। धीरे धीरे लेकिन जैसे AA की सदस्यता बढ़ने लगी, वैसे घर में मिलना मुश्किल होने लगा। किसी के भी घर में अगर 5-6 ही लोग हैं तो ठीक है, लेकिन 20-25 लोग अगर आने वाले हैं और वो भी रोजाना, तो वो तो घर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए कोई व्यवस्था की जरूरत थी।
इसमें से AA क्लब हाउसेस का जन्म हुआ। तो एक ऐसी जगह जहां पर कुछ लोग थोड़ा पैसा डाल के, क्योंकि AA के मीटिंग रूम में जो किटी बॉक्स घूमता है वहां पर कोई कंपल्शन तो है नहीं, जैसी जिसकी इच्छा या जैसे जितनी क्षमता उतना पैसा आप डाल सकते हो। लेकिन अगर मैं कोई जगह भाड़े से लूंगा, सपोज एक आध एग्जांपल आज ही के दिन का लेते हैं कि आज हमारे लिए होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल ने रिवाइवर ग्रुप को बिना मूल्य एक क्लासरूम, अपनी स्कूल की क्लासरूम दी हुई है। लेकिन अगर ये क्लासरूम हमें नहीं मिलती, अगर ये स्कूल की क्लासरूम हमें नहीं मिलती, और अगर हमें बाहर जाके किसी एनजीओ के पास से या किसी हॉस्पिटल के पास से या किसी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास से भाड़े पे लेनी होती थी, तो क्या हमारे किटी बॉक्स में आने वाला कलेक्शन ये भाड़ा निकाल सकता? शायद नहीं। एटलीस्ट अमेरिका के शुरुआत के दिनों में इतना पैसा किटी बॉक्स में नहीं आता था। तो AA गरीब हुआ करती थी, लेकिन AA के सदस्य अमीर हुआ करते थे। तो कुछ सदस्य उन्होंने ऐसे सोचा कि वैसे भी AA की मीटिंग चलती है 1 घंटा 1.5 घंटा, और बाकी के 23 साढ़े 22 घंटे जो है वो पीड़ित शराबी को अकेले में निकालना पड़ता है और वो अपने आप को बचा नहीं पाता है। तो क्यों नहीं हम लोग एक क्लब हाउस बनाए जहां पर दिन भर ऐसे शराबी पड़े रह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर शराबी उन दिनों लो बॉटम हुआ करते थे, रॉक बॉटम हुआ करते थे, नौकरियां नहीं होती थी, जाने जैसा घर भी नहीं होता था कुछ लोगों के पास में। तो ऐसे लोगों को ये क्लब हाउसेस में लाकर वहां पर बिठाया जाता था। वहां पर ये बातचीत करते थे। कुछ क्लब हाउसेस में लाइब्रेरीज होती थी, तो एक ही किताबें पढ़ते थे, स्पॉन्सर्स के साथ में बात करते थे। वहीं पर खाना पीना, कॉफी, सैंडविचेस ये सब मिलता था जो आप खरीद सकते थे। तो इस प्रकार से दिन भर एक आध जगह जहां पर शराबी पूरा दिन बिता सके, ऐसी जगह अगर बनाई जाए जहां पर शाम को मीटिंग भी हो जाए, तो ये संकल्पना में से क्लब हाउस से शुरुआत हो गई। क्योंकि अगर दिन भर बिताना हो तो फिर कुछ चंद लोग थोड़ा थोड़ा पैसा साथ में निकाल के, अगर वो जगह का भाड़ा और वहां पर जो कैंटीन चलता है वो कैंटीन की सामग्री, और ये जगह अगर ऐसी ली तो इसको मेंटेन करने के लिए कोई आदमी चाहिए, तो उसके लिए कोई मैनेजर जिसको छोटा मोटा कोई तनख्वाह देकर ऐसी जगह को चलाया जाता था। अब नेचुरली इसका मूल उद्देश्य हुआ करता था कि AA मेंबर्स को मीटिंग तक शराब से दूर रखना। तो शुरुआत में ऐसे क्लब हाउसेस को AA का ही नाम दिया जाता था, यानी जो AA समूह का जो नाम है वही नाम वो क्लब हाउस को भी दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समस्या होने लगी। पहली समस्या ये कि AA मीटिंग के किटी बॉक्स का कंपल्शन तो है नहीं। तो अगर मैं एक आध गरीब AA सदस्य हूं जो मीटिंग में आऊंगा और किटी बॉक्स में मैंने चवन्नी डाल दी और मैं निकल गया, ना मैंने आपकी कोई भी दूसरी सुविधा का वापर किया, तो मैं जा सकना चाहिए। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का संदेशा जो है वो आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं है। तो यहाँ आप कोई भी आ सकता है, चाहे वो पैसा डाले या नहीं डाले, उससे कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो AA मीटिंग ये फ्री हो सकती है या बिल्कुल मामूली आपके जो भी कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आप कर सकते हो। लेकिन क्लब हाउस का अगर आपको यूटिलाइज करना है, उसका बेनिफिट लेना है, तो फिर आपको वहां का कुछ रेंट भरना पड़ेगा या कुछ चार्जेस भरने पड़ेंगे। आप दिन भर वहां बैठने वाले हो, बिजली, पानी, चाय, कॉफी, सैंडविचेस, ये सब सुविधा, वो मैनेजर, उसकी तनख्वाह, ये सब सुविधाओं का जो आपका हिस्सा है वो आपको भरना होगा। अब इनमें से कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। लार्जली जो ग्रुप चलाने वाले सदस्य
और क्लब हाउस चलाने वाले मेंबर्स ये सेम ही हुआ करते थे। तो ऐसे होता था कि ये लोग, सिर्फ जो लोग क्लब हाउस की सुविधा इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे लोगों को प्रिफर करने लगे। अब इससे एए की सदस्यता का, जो कोई भी आकर एए की मीटिंग कर सकता है, इसमें बाधा बनने लगी। और फिर एक बात निकल आई कि भाई क्लब हाउसेस ये एक ऑप्शनल सुविधा है, चाहे तो कोई ले, चाहे तो नहीं ले, लेकिन ये मीटिंग में जाने में किसी को भी बाधा नहीं होनी चाहिए। धीरे 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 अगले 5-6 सालों में, 10 सालों में सभी क्लब हाउसेस में से एए के ग्रुप्स बाहर निकल गए, और फिर भी जिनको क्लब हाउसेस में जाना है और उसकी सुविधा लेनी है तो वो जा सकते थे। सो इस प्रकार से जो क्लब हाउसेस भले एए मेंबर के लिए ही थे, एए मेंबर का ही समय अच्छे जाए इसके लिए थे, एए मेंबर को एए का लिटरेचर, स्पॉन्सरशिप एक जगह पर बैठकर बातचीत कर सके, ऐसी जगह भले हो, लेकिन ये अलाइड सर्विस थी, यानी ये एए समूह की सेवा नहीं। एए समूह ये सब चीजें नहीं करता है, ये ट्रेडिशन में वहां पर आ गया। और ये ट्रेडिशन के अंतर्गत एए समूह अलग और एए समूह को सेवा देने हेतु बने हुए जो भी बाकी सुविधाएं है या व्यवसाय है उनको अलग, इस प्रकार से बनाने का फैसला हुआ। धीरे धीरे जो ये अलाइड सर्विसेज, यानी ये जो बाकी के जो सेवाएं, जैसे कुछ लोगों ने बिजनेसेस करने चाहे। पहले एए समूह खुद टी शर्ट्स बनाते थे, टोपियां बनाते थे, बॉल पेन्स बनाते थे, की चेन्स बनाते थे, टोकन्स बनाते थे, और उसमें से थोड़ी बहुत धनराशि प्राप्त होती थी जिससे उनके ग्रुप का भाड़ा निकालने में काम निकलता था। लेकिन जैसे बिजनेस होगा वैसे नफा होगा, प्रॉफिट होगा, और जैसे प्रॉफिट होगा वैसे कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोगों को धंधा ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और वो सोबराइटी ये दुय्यम काम हो जाएगा। यानी अभी भी अगर आपने देखा होगा तो कुछ समूह में जो चाय बांटी जाती है वो एकदम आधा ही कप चाय बांटी जाती है, लेकिन कलेक्शन में 10-10 रुपए आते हैं, तो हर किटी बॉक्स में से सरप्लस निकालना, ये जैसे वो ट्रेजरर को लगता है ये मेरा अधिकार है कि हर मीटिंग में सरप्लस आना ही चाहिए। और तो इसके लिए फिर वो चाय में कटौती करके, कम चाय मंगा के, कैसे भी करके सरप्लस हर मीटिंग में आए। अब मीटिंग का उद्देश्य सरप्लस करना है ही नहीं, मीटिंग का उद्देश्य है आए हुए सदस्यों को सुविधा देना, आए हुए सदस्यों को जो थके हुए काम बीम से आए हुए उनको वहां पर बैठने, इतना कम से कम घर जाने के पहले राहत मिले, इतना कुछ ना कुछ उनको मिलना, ये उद्देश्य होना चाहिए। पैसा बनाना या सरप्लस बनाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मन में एक हमेशा ये रहता है कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ तो भी बचना चाहिए। तो जो लोग ये बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं उन लोगों ने ये टी शर्ट्स बना के, जैसे हमारे यहाँ पर भी कुछ समूह ने, अंतर समूह ने टी शर्ट्स बनाए, स्लोगन्स प्रिंट की, और अभी भी हमारे यहाँ पर कन्वेंशंस वगैरह में कोई ना कोई इंटर ग्रुप आके अपना स्टॉल लगाता है और बेचता है ताकि उनके खर्चे में थोड़ा सा सहयोग हो। लेकिन होना ये लगा कि वह समूह के कुछ सदस्यों को वो मीटिंग महत्वपूर्ण नहीं लगती थी, वहां का प्रोग्राम महत्वपूर्ण नहीं लगता था, स्पॉन्सरशिप महत्वपूर्ण नहीं लगती थी, लेकिन वहां पर जो बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी। सो इसी वजह से ये ट्रेडिशन का जो वो दूसरा जो भाग है कि कोई भी समूह किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेगा। यानी व्यवसाय यानी प्रोफेशनली अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज देना, ये यहाँ पर अभिप्रेत नहीं है, वो तो हम लोग नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल, वो और किसी ट्रेडिशन में है। लेकिन हम लोग बाकी भी कोई व्यवसाय यहाँ पर नहीं करते हैं कि चलो
ये एए समूह ने यहाँ पर स्टॉल लगाया स्टैंडर्ड चेस का और पैसे कमाए। ये समूह ने इस प्रोग्राम में कोई चार्जेस लगा के कुछ काम किया और उसमें से पैसे बनाए। तो हम लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करते हैं। अब जब भी एए बड़ा होने लगा और ऐसी कुछ सेवाएं आवश्यक भी होने लगी, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस, यानी जो हमारा ट्रस्टीज होते हैं, ये ट्रस्टीज के हाथ में पूरा पैसा और पॉलिसी, ये दो निर्णय जो है ये ट्रस्टीज के हाथ में होते हैं। यानी फेलोशिप के जो भी हमारे निर्णय होते हैं वो निर्णय कॉन्फ्रेंस के तौर पर दो प्रकार के निर्णय होते हैं। जो फेलोशिप की तरफ से डेलीगेट्स आते हैं वो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्पिरिचुअल होती है। जैसे कि कोई समझो डेलीगेट है जो कॉन्फ्रेंस में जाएगा और बोलेगा कि यार हमारे यहाँ पर बम्बई में बहुत सारे मछुआरे हैं, तो मच्छी मारों के लिए हमको एक पैम्पलेट चाहिए। अब उन्होंने ये नहीं सोचा है कि बनेंगे कितने में, कलर में बनेंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट में, कितने पन्ने का बनेगा, उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो मछुआरे पढ़ लिख सकते हैं कि नहीं, वो खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, उसमें से प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा। ये सब चीजें डेलीगेट लोग नहीं सोचते। वो यही सोचते हैं कि नहीं यार, मछुआरों तक संदेश वहन करना है तो अपने को मछुआरों के लिए एक पैम्पलेट चाहिए। तो दैट इज वाई कहा जाता है कि डेलीगेट्स ये स्पिरिचुअली जो नीड्स है, हमारी आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन जो दूसरा भाग है हमारे कॉन्फ्रेंस का, ट्रस्टीज, वो बिजनेस का भाग देखते हैं। तो ये सवाल वो देखेंगे कि अरे भाई, आप लोग बोलते रहे हो कि मछुआरों के पैम्पलेट बनाने हैं, भारत के सभी भाषा में बनाने हैं, लेकिन भारत का सिर्फ जो निचला हिस्सा है, यानी महाराष्ट्र लेके कन्याकुमारी तक और उस तरफ उड़ीसा तक, जहां पर ही सिर्फ समुद्र है, वो नॉर्थ में तो कई समुद्र है नहीं, तो नॉर्थ इंडियन भाषाओं में तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, खाली साउथ इंडियन भाषा में ही बनाया तो चलेगा। फिर कितने मछुआरे हैं जो पढ़े लिखे हुए मालूम नहीं है, और फिर अगर वो सभी भाषाओं में बनाएंगे अगर हम लोग, और वो कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए, तो फिर अरे केरला में तो 400 ग्रुप से, तमिलनाडु में तो 500 ग्रुप से, आंध्र प्रदेश में 450 ग्रुप से, लेकिन गोवा में 70-80 ग्रुप से, फिर उड़ीसा में तो एक भी ग्रुप नहीं या 2-4 ही ग्रुप से। तो फिर ओडिया भाषा को हम लोग फिलहाल नहीं लेते हैं, और गोवन जो कोंकणी भाषा है उसमें बाद में लेते हैं। पहले बड़ी संख्या में जहां पर ये काम है उसको पहले हाथ में लेते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रस्टीज, ये फाइनेंशियल निर्णय ले रहे हैं, यानी कि करना तो है, आपने बोला हुआ आध्यात्मिक कार्य जो है उसको पूरा तो करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी, प्रूडेंस, पैसा कितना लगेगा, फिर वो पैम्पलेट का पेपर कौन सा रहेगा, इंडियन रहेगा इंपोर्टेड रहेगा, वो 4 कलर में प्रिंट होगा या सिंगल कलर में होगा, उसका कॉस्ट कितना होने से ए मेंबर्स को अफोर्डेबल होगा, ज्यादा हो गया तो शायद नहीं लेगा। ये सभी विचार करते हुए वो पैम्पलेट बनाने का निर्णय लेते हैं। तो ये जो डिसीजन है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये डिसीजन हो गया, ये किसका, पॉलिसी एंड फाइनेंस। पॉलिसी क्या, तो मछुआरों के लिए पैम्पलेट बनाना जरूरी है, और फाइनेंस में का दृष्टिकोण ये बताता है कि फिलहाल ट्रायल बेसिस पर 3 ही भाषा में बनाते हैं और 500 छापते हैं, उनका रिस्पॉन्स देख के फिर बाकी भाषाओं में बनाएंगे। ये फाइनेंस का डिसीजन हो गया। लेकिन अभी इसके आगे जो आता है वो आता है एक ऑफिस। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जनरल सर्विस बोर्ड जो है, हमारे जो ट्रस्टीज होते हैं जो अमेरिका के हैं, उनके हाथ के नीचे 2 सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनियां हैं, यानी 2 बिजनेसेस जो है ये रजिस्टर्ड बिजनेस करके है, जिसके ओनर्स हमारे ट्रस्टीज होते हैं। लेकिन ये बिजनेसेस जो है
वो अलग से रजिस्टर किए जाते हैं। तो ये कौन से दो बिजनेसेस हमारे हैं? तो AAWS, AA वर्ल्ड सर्विसेज, पहले इसका नाम वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी हुआ करता था। यानी पूरा साहित्य है AA का, इसे छपवाना, उसको बनाना, उसको प्रिंट करना, उसको अच्छे से अच्छा दिखवाना और उसको छोटा सा प्रॉफिट रख के उसको फेलोशिप को बिकवाना, यह व्यवसाय करने के हिसाब से वर्क्स पब्लिशिंग कंपनी करके कंपनी हुआ करती थी। बाद में वो सब AA वर्ल्ड सर्विसेज में आ गया। और दूसरी जो सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस वो है ग्रेप वाइन, वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैगजीन, जो इंग्लिश और स्पेनिश भाषाओं में अमेरिका पब्लिश करती है। अभी ये जो दो बिजनेसेस है, यहाँ पर एम्प्लॉयज है, ग्रेप वाइन के लिए एडिटर्स है, पब्लिशर्स है, प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव्स है, तो बहुत सारे लोग हैं। और AA लिटरेचर जो छपता है उसका बहुत सारा प्रिंटिंग है और वो दुनिया भर में फैलता है, तो उसके वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे डिपोज है। तो जैसे कि इंग्लिश साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी जहां जहां पर वो लिटरेचर बिकवाना है तो वहां पर डिपोज बनते हैं और वहां पर लिटरेचर भेजा जाता है, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये तो जैसे कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका बिक्री होता है, और ये सभी खर्चों को मध्य रखते हुए इसकी प्राइस बनती है, ताकि नॉट फॉर प्रॉफिट बट नॉट फॉर लॉस ऑल्सो, कोई भी हम लोग ये काम करें इसमें से ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो ये जो चीजें हैं ये सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड होती है, यानी कि इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई ट्रस्टी अपॉइंट होता है जरूर। लेकिन हर ये कंपनी के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं जो कि सैलरी के ऊपर होते हैं, और ये डायरेक्टर्स वो कंपनी को एक जैसे कोई भी आम कंपनी चलाई जाती है उस प्रकार से इस कंपनी को चलाते हैं। तो इसका मतलब ये कि AA का समूह कोई व्यवसाय नहीं करेगा, AA का अंतर समूह या AA की कॉन्फ्रेंस या AA के ट्रस्टीज खुद कोई व्यवसाय AA के नाम पर नहीं करेंगे। लेकिन AA का संदेश वहन सही ढंग से हो, AA का साहित्य उपलब्ध हो, AA के मैगजीन्स टाइमली पब्लिश होके हर घर तक पहुंचे, इसके लिए ये जो अलाइड सर्विसेज, जो सपोर्ट करने वाली जो सर्विसेज है, ये हो सकती है। और इनके अलग ऑफिसेस होंगे, इनका अलग कैपिटल होगा, इनका अलग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और उसके उसमें से अगर कुछ सरप्लस होता है तो वो जनरल सर्विस बोर्ड की जो टोटल इनकम आती है वो इनकम में वो सरप्लस करके दिखाया जाएगा। लेकिन जनरल सर्विस बोर्ड जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट के जैसा काम करता है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो जो भी नफा इन सभी चीजों में से आया वो दोबारा शराब, ज्यादा से ज्यादा शराबियों तक एक का संदेश वहन करने में वो इस्तेमाल होता है। तो ये जो ट्रेडिशन है इसमें ये सब चीज आता है, क्योंकि अगर समझो कल AA की बिग बुक बिकना बंद हो गई या AA का साहित्य बिकना बंद हो गया, तो ये AA वर्ल्ड सर्विसेज वाला जो पूरा कामकाज है ये बैंकरप्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका कोई खरीद ही नहीं रहा है तो उनको पैसा नहीं आएगा, उनका पैसा नहीं आएगा तो उनका नफा नहीं होगा, नफा नहीं होगा उल्टा लॉस होने लगेगा। तो लॉस होने लगेगा तो उनके आदमियों को छोड़ना पड़ेगा, उनकी ऑफिस को छोड़ना पड़ेगा, या शायद जनरल सर्विस बोर्ड को वो पूरा का पूरा धंधा बंद करना होगा। तो वो धंधा बंद करने से AA को या AA के नाम को या AA के फेलोशिप को या AA के समूह को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे छोटे स्तर पर एक AA ग्रुप ये चलना जरूरी है, क्योंकि वहां पर पैसा प्रतिष्ठा ये सब नहीं आती है। लेकिन उसने चलाया हुआ एक AA का क्लब हाउस है, वो बंद हो या चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज जैसे आज भी कुछ क्लब हाउसेस अमेरिका में है, लेकिन पहले जिस प्रकार से हर गांव गांव में क्लब हाउसेस हुआ करते थे अभी उतनी मात्रा में वो नहीं है, अभी बहुत कम हो चुके हैं।
और क्योंकि समाज में भी बहुत सारी जागृति आ गई है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को जगह मिलती भी है। और कुछ ऐसी जगह है जहां पर कॉमनली यानी 8-10 ग्रुप मिलकर, अभी न्यूयॉर्क जैसी जगह जहां पर बहुत ही महंगी भाड़े से जगह मिलती है, वहां पर 10-10 ग्रुप मिलकर एक आध जगह भाड़े पे लेते हैं और फिर अलग अलग समय पर अलग अलग दिन पर अपनी मीटिंग्स चलाकर वो अपना हिस्से का रेंट पे करती है। लेकिन इस ट्रेडिशन का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय, नफा, पावर, पॉलिटिक्स, ये सभी जो चीजें जो एक आम बिजनेस के साथ में जुड़ी होती है, इसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में से बाहर रखना ये बहुत जरूरी है। और इसके बावजूद अगर कोई सेवाएं हमने बनाई है तो कुछ सदस्यों ने मिलकर, सपोज अभी ठाणे में हम लोग 10 समूह है, हम लोगों ने सपोज कल मिलकर सोचा कि हाँ यार बड़ी दिक्कत होती है, हमारे में किसी के पास जगह नहीं है, एक का मीटिंग 7:30 से 9 होता है, उसके बाद में दिन भर शराबी रुक नहीं पाता है और फिर बार बार पीते रहता है, फिर उसको रिहैब सेंटर में जाना पड़ता है या कहीं ना कहीं मदद लेने को, डिटॉक्स करने के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। क्यों न हम लोग 10 जन मिलकर एक आध जगह भाड़े से ले जहां पर सब लोग बैठ के वहां पर दिन भर निकाल सकते हैं। और सपोज 10 जनों ने इसमें पुढाकार ले लिया, सामने आकर उन्होंने ऐसी जगह ले ली, तो ये समूह की एक्टिविटी नहीं होगी बल्कि वो 10 सदस्यों की एक्टिविटी होगी। और उसके ये व्यवसाय जो बना हुआ है उसका पूरा अधिकार, उसके मैनेजर की अपॉइंटमेंट, उसका पगार, उसका भाड़ा, उसका बिजली का खर्चा, उसका चाय पानी नाश्ता जो भी है, ये पूरी आर्थिक जिम्मेदारी ये 10 जनों की होगी। और उन्होंने फिर वो फ्री देना है या थोड़ा मामूली पैसा लेना है या जो भी उसकी कॉस्ट है वो लेनी है या जो भी है, ये सभी निर्णय वो ही 10 लोग लेंगे। उनका एए के जो 10 समूह जो काम करते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी भले जरूरी है ये सेवाएं, लेकिन ये एए समूह नहीं करेगा, ये सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड या बाहर ही ये सेवाएं होनी चाहिए। तो एए मेंबर के पास फ्रीडम है वो अगर व्यवसाय करना चाहे, लेकिन एए समूह कोई व्यवसाय नहीं करेगा। जैसे हमने शुरुआत में ही देखा था कि ये ट्रेडिशन 3 प्रकार के रिश्तों की बात करते हैं। एक है एए के मेंबर का उसके समूह के साथ रिश्ता, फिर ए समूह का एए एज अ होल के साथ रिश्ता, और एए एज अ होल का कम्युनिटी के साथ में रिश्ता। तो अभी हम ये डिफरेंस जान गए कि पूषण एज अ मेंबर एक काउंसलर बन सकता है या टी शर्ट बी शर्ट बना के धंधा कर सकता है या ए के किताबों के लिए जैकेट्स वैकेट्स या ए पैराफर्नेलिया का एखादा दुकान डाल सकता है और वो बेच सकता है, ये पूषण कर सकता है। या पूषण और लकी मिलके एक क्लब हाउस डाल सकते हैं जहां पर बेवड़े आके पड़े रहे दिन भर, ये पूषण और लकी कर सकते हैं। लेकिन ये रिवाइवर समूह ये नहीं कर सकता। तो इंडिविजुअल राइट्स अलग है, समूह के रिस्ट्रिक्शंस अलग है, और ए एज अ होल के रिस्ट्रिक्शन जो है वो अलग है। तो अगर पूषण और लकी ऐसा कोई व्यवसाय करते भी हैं तो भले वो कितने भी चहेते सदस्य रहेंगे, कितने भी वेल रिस्पेक्टेड रहेंगे, इन सब व्यवसायों को एए का नाम नहीं देंगे। फॉरगेट एए का नाम, वो रिवाइवर ग्रुप का भी नाम नहीं। मैं कल जाके रिवाइवर स्टॉल या रिवाइवर बुक स्टोर ऐसा भी मैं नहीं कर सकता हूं। इम्प्लाइड एफिलिएशन, भले हमारा और ये रिवाइवर ग्रुप का और ये व्यवसाय का कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन नाम रिवाइवर रखने से लोगों को लगेगा अरे ये तो रिवाइवर ग्रुप का धंधा है लगता है। तो इम्प्लाइड भी एफिलिएशन होगा तो वो मंजूर नहीं है, और एक्चुअल एफिलिएशन तो टोटली मना है, वो ये ट्रेडिशन में है। तो ये एफिलिएशन तो एक बात हो गई। दूसरी बात है एंडोर्समेंट, यानी कि मैं और लकी अगर रिवाइवर ग्रुप में बैठते हैं और जो भी नया मेंबर आया तो और उसको बोलते हैं अरे तेरे को अगर 7:30 से 9 के बाद में अगर दिक्कत होती होगी, दिन भर टाइम पास करना होगा, तो तू अमुक अमुक पत्ते पे पहुंच जा, तेरे को फायदा होगा, और तू ये कर, और तू वहां का मेंबर बन जा, और सिर्फ 500 रुपये महीने में तू मेंबरशिप ले। ये सब लफड़े, ये सब धंधा, ये सब एंडोर्समेंट, ये सब चीजें एए का समूह नहीं करता। भले वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी उपयुक्त हो,
वो एए का काम नहीं है, तो ऐसी जगह का रिकमेंडेशन भी हम नहीं करते। तो जब भी हमको कोई पूछता है, अरे कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताओ, कोई अच्छा सा रिहैब सेंटर बताओ, या कोई अच्छा सा क्लब हाउस बताओ, तो हम लोग बोलते हैं कि कई सारे हैं, आप सभी से बात कर लीजिए और अपने आप से आप चूज कर लीजिए। सभी अच्छे हैं, सभी का अपना अपना पोजीशन है, आप जाके देख लीजिए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ऐसा कोई मत नहीं है, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई समूह ये नहीं बोलेगा कि ये रिहैब सेंटर वो रिहैब सेंटर से बेहतर है। तो वी डू नॉट टेक साइड्स। हम लोग ना अपोज करते हैं, ना एंडोर्स करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, ना किसी के खिलाफ जाते हैं। तो ये इस इसेंस, ये ट्रेडिशंस का इसेंस मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो दो चीजें मुझे यहाँ पर, दो अनुभव आपके सामने बताने हैं। तो जैसे अमेरिका में शुरुआत के दिनों में 1940s की ये सब बात है, क्योंकि 46 में ये लॉन्ग फॉर्म लिखा गया था। तो एक डिस्टिलिंग कंपनी, यानी शराब बनाने वाली कंपनी थी, उनका ये मानना था कि शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से शराब पीना ये गलत है। यानी अगर हम लोग यंग एज से लोगों को सिखाते हैं किस प्रकार से शराब पीनी चाहिए, कौन से मनस्थिति में शराब पीनी चाहिए, कितनी शराब पीनी चाहिए, किससे ज्यादा शराब का आकर्षण हो रहा है तो कैसे अपने आप को रोकना चाहिए, इस प्रकार का एजुकेशन अगर हम लोग पूरे पॉपुलेशन को करेंगे, सब दुनिया को करेंगे, तो शराबी बनेंगे ही नहीं। ज्यादातर लोग शराबी बनते हैं क्योंकि उसके बारे में कोई मालूमात देता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है पीने का, कैसा, कितना, कब, किसके साथ, ये सब कोई सिखाता नहीं है। तो इसके लिए शराबी बहक जाते हैं। तो ये बहके नहीं, इसके लिए अगर हम लोग एजुकेशन करेंगे तो टाइमली इंटरवेंशन भी हो सकेगा। अगर कोई प्रॉब्लम ड्रिंकर बन भी रहा है तो उसको समय पर हम लोग पकड़ के ए में ला सकेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, ये सबको अच्छा लगा। और हमारे एक सदस्य को कांटेक्ट किया गया जो काफी फेमस हुआ करते थे, और उनको पूछा कि ये जो एजुकेशन प्रोजेक्ट है उसको क्या आप हेड करोगे, यानी वो कंपनी का चेहरा बनकर आप अलग अलग जगह पे बात करोगे, हम आपको टीवी, रेडियो, प्रेस, हर जगह पे आपका नाम छपवाएंगे, और आप ये एजुकेशन की क्यों जरूरत है इसके बारे में बात करें। अब वो नए नए दिन थे और वो व्यक्ति को भी ऐसे लगा कि यार बात तो ठीक है, ये इससे शराबी बनने की मात्रा बहुत कम हो जाएगी और ये समाज की बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। तो उन्होंने जीएसओ हमारा जो था, वो टाइम पे हमारा फाउंडेशन ऑफिस था, उनको खत लिखा कि ऐसा ऐसा प्रपोजल आया है, तो मैं ये करूं या नहीं करूं। इनफैक्ट उनको लगा कि बेटर रहेगा कि अगर मैं खुद ही जाके बात करूं। तो वो जाते हैं, और किसी को वैसे देखने के लिए कुछ गलत तो नहीं लग रहा था, लेकिन इंस्टिंक्टिवली ऐसे लग रहा था कि ये बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, और लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी जैसे पहले वाले इसमें लिखा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एग्जैक्टली करता क्या है, ये लोगों की जनजागृति करता है कि लोगों को शराब से परावृत्त करता है, ये हॉस्पिटल चलाते हैं तो ये मेडिकल प्रोग्राम है, या ये बिहेवियरल एनालिस्ट वाले लोगों का प्रोग्राम है क्या। तो एए का जो मैसेज है, एए का जो इमेज है, वो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंड हो जाएगी, और ये नहीं हो इसके लिए ये ट्रेडिशन हमें ये सब चीजें करने से रोकती है। एक ऐसा ही एक हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है, उन्होंने हमको, जीएसओ को अप्रोच किया था कि भाई हमारे हजारों मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल ओवर इंडिया गांव गांव में घूमते हैं, और अगर आपका जो लिटरेचर है, पैम्पलेट्स है, किताब है, वो हम हमारे पैसे से खरीदेंगे, सीएसआर के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हम लोग ये खरीदेंगे और डॉक्टरों तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो गांव गांव में, छोटे छोटे कस्बों में भी आपका ए का संदेशा जाएगा, डॉक्टर लोग उनके पेशेंट्स को ए में भेजना चालू करेंगे और बड़ी मात्रा में काम होगा। अब हमारे ट्रस्टीज के सामने चैलेंज था, उनको बड़ा टेम्पटिंग लगा ये, क्योंकि
हम कभी पहुंचेंगे, हर डॉक्टर तक कभी पहुंचेंगे? हम हमारे शहर के डॉक्टरों तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, तो गांव गांव छोटे छोटे विलेजेस के डॉक्टरों तक कभी पहुंच पाएंगे? अगर ये कंपनी पहुंच रही है तो ओवरनाइट, यानी कुछ ही महीनों में पूरे भारतवर्ष में इसकी जानकारी हो जाएगी। लेकिन हमारे वो टाइम के जो ट्रस्टीज थे, उन्होंने ये सोचा कि वो जो कंपनी है, फार्मा कंपनी, उनका खुद का एक प्रोडक्ट है जो एंटी क्रेविंग ड्रग जैसा था, कि शराब पीने के बाद में जो हाथ पैर कांपते हैं वो कांपे नहीं, इसके लिए एक उन्होंने ड्रग बनाया था। और ये ड्रग का मार्केटिंग करने के लिए वो गांव गांव में उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जा रहे थे। तो कल जाके अगर इनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर ए के बारे में बात करेंगे, तो डॉक्टरों को तो कंफ्यूजन होगा, डॉक्टरों को समझेगा नहीं कि ये कंपनी का ये प्रोग्राम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस, कि ये जो गोली है, ये गोली और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ऐसा कॉम्बिनेशन होने से रुकती है। तो इसे कहते हैं इम्प्लाइड एफिलिएशन, यानी भले हम दोनों सिर्फ सहकार्य की भावना से कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले के मन में अगर ऐसा भाव आता है कि ये सहकार्य नहीं, ये शायद एक ही है, तो ऐसी भी जो इम्प्लाइड एफिलिएशन वाली जो चीजें हैं, ये हम लोग नहीं करते हैं। सो ये हम लोग अवॉइड करते हैं। तो आगे का पोर्शन पढ़ते हैं और फिर आगे इसी मुद्दे को और बारकाई से समझने का प्रयास करते हैं। ओवर टू यू, चंदू। Thank you, Bhushan. These adventures implanted a deep-rooted conviction that in no circumstances could we endorse any related enterprise, no matter how good. We of Alcoholics Anonymous could not be all things to all men, nor should we try. Years ago, this principle of no endorsement was put to a vital test. Some of the great distilling companies proposed to go into the fields of alcohol education. It would be a good thing, they believed, for liquor trade to show a sense of public responsibility. They wanted to say that liquor should be enjoyed, not misused. Hard drinkers ought to slow down, and problem drinkers, alcoholics, should not drink at all. In one of their trade associations, the question arose of just how this campaign should be handled. Of course, they would use the resources of radio, press, and films to make their point. But what kind of person should head the job? They immediately thought of Alcoholics Anonymous. If they could find a good public relations man in our ranks, why wouldn't he be ideal? He'd certainly know the problem. His connection with A would be valuable because of the fellowship stood high in public favor and hadn't an enemy in the world. Soon they'd spot their man and A with the necessary experience. Straightway he appeared at New York's AA headquarters, asking, "Is there anything in our traditions that suggests I shouldn't take a job like this one? The kind of education seems good to me and is not too controversial. Do you headquarter folks see any bugs in it?" At first glance, it did look like a good thing. Then doubt crept in. The association wanted to use our member's full name in all its advertising. He was to be described both as its director of publicity and as a member of Alcoholics Anonymous. Of course, there couldn't be the slightest objection if such an association hired an A member solely because of his public relations ability and his knowledge of alcoholism. But that wasn't the whole story. For in this case, not only was an A member to break his anonymity at a public level, he was to link the name Alcoholics Anonymous to this particular educational project in the minds of millions. It would be bound to appear that AA was now backing education, Liquor Trade Association style. The minute we saw this compromising fact for what it was, we asked the prospective publicity director how he felt about it. "Great guns," he said. "Of course, I can't take the job. The ink wouldn't be dry on the first ad before an would go up from the dry camp. They'd be out with lanterns looking for an honest AA to plump their brand of education.
A would land exactly in the middle of the wet-dry controversy. Half the people in this country would think we would sign up with the dries. The other half would think we joined the wets. What a mess. Nevertheless, we pointed out, you still have a legal right to take this job. I know that, he said, but this is no time for legalities. Alcoholics Anonymous saved my life, and it comes first. I certainly won't be the guy to land A in big time trouble, and this really do it. Concerning endorsement, a friend had said it all. We saw as never before that we could not lend the A name to any cause other than our own. Thank you. थैंक यू Okay, चंदू। जी। हाँ जी, तो अब हम इसके दूसरे भाग में आते हैं, ट्रेडिशन के। दिस एडवेंचर्स की बात से शुरू करता हूं मैं। इन अनुभवों ने हमारे भीतर एक गहरी और स्थायी धारणा बिठा दी थी कि किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी संबंधित संस्था का समर्थन नहीं कर, संबंधित यानी कि जो शराब छुड़ाने का काम करे या शराबियों को मदद करने का काम करे या कुछ भी, उसको संबंधित कह रहा है। अब भूषण ने इसको बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है आगे। हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस वाले हर व्यक्ति के लिए हर चीज नहीं बन सकते और न ही हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। सालों पहले नो एंडोर्समेंट के इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण परीक्षा हुई कुछ, और ये उदाहरण है एक बड़े शराब निर्माण कंपनी की शराब के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में उतरना चाहती थी। उनका मानना था कि शराब उद्योग के लिए अच्छा होगा कि वो अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारी का कुछ परिचय दे। सार्वजनिक जिम्मेदारी यानी कि आजकल की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे ये संदेश देना चाहते थे कि शराब का आनंद लिया जाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हैवी पीने वालों को कम करना चाहिए और समस्याग्रस्त पीने वालों को यानी शराबियों को बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। तो उनके एक एसोसिएशन की मीटिंग में ये बात जब निकली कि इस अभियान को कैसे चलाया जाए, तो स्वाभाविक था वो रेडियो, प्रेस और फिल्म के माध्यम से अपना संदेश फैलाना चाहते थे कि हम भले शराब बनाते हैं लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारी से पियो। जिसको जमती है पीने का तरीका सिखाएंगे, और जो नहीं पी पाते हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उन्होंने तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, ऐसा बता करके वो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते थे। तो जब ये चर्चा हुई कि इस संदेश फैलाने का काम करने का लीड कौन लेगा, इसकी अगुवाई कौन करेगा, तो उनकी नजर तुरंत अल्कोहलिक्स एनोनिमस पर गई। अगर उन्हें हमारी पंक्तियों में से कोई अच्छा जनसंपर्क, हमारी व्यक्तियों में से पब्लिक रिलेशन वाला विशेषज्ञ मिल जाए तो वो कितना उपयुक्त होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। वह निश्चित ही इस समस्या को गहराई से समझता होगा। उसका ए से जुड़ा होना बहुत मूल्यवान साबित होगा, क्योंकि फेलोशिप की जनता में बहुत प्रतिष्ठा थी और दुनिया में इसका एक भी दुश्मन नहीं था। बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं दोस्तों, कि उस समय भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि हम तभी तक इतने झमेले नहीं किए थे, बड़े छोटे मोटे हो रहे थे, लेकिन हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा था। हम पूरी निष्ठा से काम करते थे और हम किसी से पंगा नहीं लेते थे, इसके लिए किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो ऐसे ही वो एसोसिएशन को जल्दी एक व्यक्ति मिल गया जो ए का सदस्य था और उसके पास आवश्यक अनुभव भी था, यानी कि पब्लिक रिलेशन में, यानी कि फिल्म टेलीविजन में बात करने का। जब उसके पास ये ऑफर आया तो वो सीधा न्यूयॉर्क के मुख्यालय पहुंचा और वहां पूछने लगा कि क्या हमारी किसी परंपरा में ऐसा कुछ कहा गया है कि मुझे इस तरह की नौकरी नहीं लेनी चाहिए। मुझे तो ये प्रकार की शिक्षा और अच्छी गैर विवादित लगती है। क्या आप मुख्यालय वाले, हेडक्वार्टर्स वाले लोग इसमें कोई समस्या देखते हैं क्या? तो पहली नजर में जब हेडक्वार्टर्स में इसके ऊपर देखा गया
पहली नजर में तो ये अच्छा काम लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मन में संदेह आने लगे। अ, जो एसोसिएशन था चाहता था कि हमारा सदस्य का पूरा नाम उसकी सारी विज्ञापन सामग्री में इस्तेमाल किया जाए, उसे उनके डायरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी के रूप में और साथ ही अल्कोहलिक्स अनोनिमस के सदस्य के रूप में पेश किया जाना था। स्वाभाविक रूप से इसमें कोई आपत्ति नहीं होती अगर कोई संस्था किसी ए सदस्य को उनका जनसंपर्क और अल्कोहलिज्म के ज्ञान के कारण ही नौकरी पर रखे, लेकिन यहाँ मामला इतना सरल नहीं था। इस स्थिति में न सिर्फ ए का सदस्य को अपनी सार्वजनिक अनामिकता तोड़नी थी, बल्कि लाखों लोगों के मन में ए का नाम सीधे इस विशेष शिक्षा परियोजना से जोड़ देना था। दुनिया को यह दिखता कि अब ए शराब व्यापार संघ की शैली वाली शिक्षा को समर्थन दे रही है। जैसे ही जैसे ही ये उस वक्त समझ में आया कि ये कितनी समझौतापूर्ण और जोखिम भरी काम हो सकता है, तो हमने उस प्रस्तावित पब्लिसिटी डायरेक्टर से पूछा, मुख्यालय वालों ने, कि इस बारे में कैसा महसूस करता है जब देखा कि इसमें खतरा क्या है। वो बोला, अरे बाप रे, मैं ये नौकरी कैसे ले सकता हूँ। पहला विज्ञापन छपते ही ड्राई कैंप मतलब शराबबंदी समर्थक वाले धड़ाधड़ चीख चिल्ला उठेंगे। वे लालटेन लेकर निकल पड़ेंगे कि कोई ईमानदार ये सदस्य मिले जो उनकी तरह की शिक्षा का समर्थन करे। यानी कि जो शराबबंदी वाले थे वो भी हमारी तरफ दौड़ आएंगे कि भाई अगर तुम जिम्मेदारी से पियो कहते हो तो फिर पीना भी मन करो कहो। ये सीधा वेट ड्राइव यानी कि शराब समर्थक और शराब विरोधी राजनीति के बीच में जा गिरेगी। इस देश के आधे लोग सोचेंगे कि हमने ड्राई लोगों का साथ दिया है और बाकी आधे यह मान लेंगे कि हमने वेट लोगों का यानी कि पीने वालों को स्वीकार किया। कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, भयानक गड़बड़ी हो जाएगी। फिर भी हमने उसे समझाया, कानूनी रूप से तुम्हें यह नौकरी लेने का पूरा अधिकार है। तो वो सभासद बोला, मुझे पता है, लेकिन यह कानूनी अधिकार की बात करने का समय नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरी जान बचाई है और एए सबसे पहले आता है। मैं वह आदमी कभी नहीं बनूंगा जो ए को किसी बड़े संकट में धकेल दे, और यह नौकरी बिल्कुल वैसा ही दिख रही है मुझे। समर्थन एंडोर्समेंट के बारे में हमारे मित्र ने सब कुछ साफ कर दिया था। हमने पहले कभी इतनी स्पष्टता से नहीं देखा था कि हम ए का नाम अपने खुद की कार्यशीलता के अलावा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं दे सकते हैं। किसी भी ए समूह को किसी संबंधित संस्था या बाहरी उद्यम का समर्थन नहीं करना चाहिए। इसका जो मुख्य बिंदु निकलता है, जो भूषण ने काफी कवर किया और आगे भी अभी कवर करेगा, कि किसी बाहरी संस्था का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो संस्था कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। किसी बाहरी संस्था से पैसे का लेन देन नहीं करेंगे, व्यावसायिक काम नहीं करेंगे, जिसमें अस्पताल, स्कूल या रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसा कुछ भी बिजनेस नहीं चलाएंगे। ए का नाम किसी भी बाहरी विज्ञापन में इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे भूषण ने वो कंपनी का एग्जाम्पल दिया, तो ए को सुरक्षित रखने का ट्रेडिशन 6 हमें ये याद दिलाती है कि ए का नाम सिर्फ रिकवरी के लिए है। ए किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये आध्यात्मिक संस्था है, व्यापारिक या राजनीतिक नहीं। हमारा फोकस केवल एक शराबी की दूसरे शराबी की मदद है। ओवर टू यू भूषण। थैंक यू लकी। जैसे लकी भाई ने कहा उसी प्रकार से समाज में शराबी की मदद करने के लिए
सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं, कई सारे लोग होते हैं जो शराबी की, उसके परिवार की, उसके बच्चों की मदद करना चाहता है। ऐसे ही ठाणे में हमारे यहाँ पर एक आध पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे। उनको ऐसे लगा कि ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, तो घर घर में अभी शराब की समस्या होने लगी है। तो गणेश उत्सव के समय पर उन्होंने सोचा कि हर गली मोहल्ले में जाकर हर स्टेज पे से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में हमारे अनुभव कथन और मार्गदर्शन जो है ये होना चाहिए। हमें भी लगा कि बहुत प्रॉमिसिंग, ये मतलब रेडीमेड पब्लिक इंफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में आ रही है, तो हमने ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब भी हम लोग पहले ही अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए गए तो हमने देखा तो वो पॉलिटिकल पार्टी के झंडे हर जगह पर लगे हुए थे। उनके कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को पकड़ पकड़ कर बाहर लाके बिठा रहे थे। और स्टेज पर जहां पर हम लोग खड़े होकर बात करने वाले थे, वहां पर बड़ी अक्षरों में एक बैनर लगा हुआ था कि उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की संस्था का नाम और खातरी से शराब छुड़ाए, इस प्रकार का कुछ घोष वाक्य। और तभी के तभी हमको पता चल गया कि भले हम यहाँ पर स्टेज पे खड़ा होकर बोले भी कि ये अलग है, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी अलग है, हमारी संस्था अलग है, और हम सिर्फ एक दूसरे के सहकार्य से ये मद्य मुक्तता का संदेश आप तक लेके आए, ये हम लोग लाख बोले, फिर भी जो पूरा माहौल था वो माहौल तो देखकर आने वाले हर एक को यही लगने वाला है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये इसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई नया उद्यम है। खैर, वो मीटिंग तो हम लोगों ने, मैं ही था, मैंने बात करके कोऑपरेशन करते हैं, हम सहयोग करते हैं, सहकार्य करते हैं, लेकिन हम अलग अलग है वगैरह वगैरह मैंने बातें तो कर दी। लेकिन फिर हमको समझ में आ गया कि कोई भी जब भी इस प्रकार का कार्यक्रम होगा तो इसके बारे में पहले से ये पॉलिटिकल पार्टी को बता देना कि भाई आप अलग अलग लोगों को बुलाओगे, उनमें से एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, इस प्रकार से होगा तो वो सहकार्य लगेगा, नहीं तो वो संयुक्तता का भास होगा। ऐसे ही एक कहानी हुई थी, लकी को याद होगी कि गोवा राज्य में हमारे एक मुख्यमंत्री थे जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बड़े चहेते हुआ करते थे। उनकी वजह से हमको बहुत लाभ हुआ। हर एक ऑफिस में और हॉस्पिटलों में एक ही मीटिंग चालू हो गई, एक मीटिंग प्लेस और ऑफिस स्पेस भी उन्हीं की मदद से हमको मिला। इतना ही नहीं तो हमारे ए कन्वेंशन में वो प्रमुख अतिथि के रूप में वहां पर आए थे, बहुत सारा समय उन्होंने हमारे साथ बिताया। हमारे कई सारे सीनियर मेंबरों को नाम से वो पहचानते थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम सब खुश थे कि भाई राज्य का मुख्यमंत्री हमारे साथ में है तो कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जल्द ही वो समय आ गया जब इलेक्शंस आ गए, और अभी इलेक्शंस आए तो इन्होंने हमारे जो ट्रस्टी थे उनको बुलवा लिया और उनको बोला कि ले आओ अपने सब सदस्यों को, बैनर वैनर लेके, और हम लोग मोर्चा निकालने के लिए, दारूबंदी के लिए मोर्चा निकालने वाले, बड़ी मात्रा में 10,000 लोगों की संख्या में हम लोग ये मोर्चा निकालेंगे, और आप भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बैनर लेके इस मोर्चे में शामिल हो जाओ। अब बड़ी समस्या हो गई, एक तो हम लोग कोई मोर्चे वोर्चे में भाग लेते नहीं है, ऊपर से एक पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के नीचे तो हम लोग अपना बैनर लेके तो जा नहीं सकते। तो ट्रस्टी ने इमीडिएटली जनरल सर्विस बोर्ड को अप्रोच किया कि भाई ऐसी समस्या है तो वो चीफ मिनिस्टर है तो हमारे बहुत अच्छे मित्र, इनको मना भी नहीं कर सकते। इनको मना करेंगे तो अगर बुरा मान गए तो जो हमारे को जो स्पेशल स्टेटस मिलता है वो चला जाएगा, और अगर हम लोगों ने हाँ कर दिया तो हमारे ट्रेडिशन का वायलेशन होगा, तो क्या किया जाए। ऐसे में काफी सारा विचार मंथन होने के बाद में, जो मैंने पहले ही कहा
कि एए एज अ होल एंड इंडिविजुअल मेंबर, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो एक ए मेंबर जैसे मैं हूं, वैसे ही मैं भारत का नागरिक भी हूं, और वैसे ही मेरे चॉइस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। लेकिन मैं अपने एए को अपने पॉलिटिकल पार्टी के इसमें नहीं लाता हूं। लेकिन मैं वैयक्तिक रूप से किसी भी मोर्चे में या कोई भी सभा में भाग ले सकता हूं। तो मार्ग हमने यही निकाला कि आप एए का बैनर नहीं ले जाएंगे, लेकिन वैयक्तिक रूप से अगर आप अपनी हाजिरी वहां पर लगाना चाहते हो तो आप जरूर लगाओ, जिससे उनको ये भी नहीं लगे कि हम लोगों ने उनका अनादर किया, उनका अपमान किया। और साथ ही साथ हमारा अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम वो पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ में जुड़ा नहीं होगा, तो एफिलिएशन का यानी ट्रेडिशन 6 का ये भंग होने की भी संभावना नहीं रही। तो कई बार हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करके, डिफरेंशिएट करके, इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज वर्सेस ए ग्रुप की लिमिटेशंस, इन चीजों को समझना, ये ऐसे ट्रेडिशन के बारकाई के खूबियों में से ये हमको समझ में आता है। ऐसे ही एक रिहैब का अनुभव बताना चाहूंगा कि जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस अपने अवेयरनेस प्रोग्राम करता है, वैसे कई सारे रिहैब्स भी अलग अलग एरिया में जाके अपने अपने अवेयरनेस प्रोग्राम करता है। और उनके अवेयरनेस प्रोग्राम में वो अल्कोहलिज्म के बारे में बात करते हैं, इसी प्रकार से कुछ सदस्य अपना अनुभव कथन करते हैं, लेकिन अंत में वो बोलते हैं कि कैसे वो रिहैब सेंटर ने उनकी मदद की। यानी ये वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अवेयरनेस नहीं, बल्कि वो रिहैब सेंटर का अवेयरनेस करते हैं। तो ऐसे ही एक रिहैब सेंटर ने हमें अप्रोच किया और बोला कि हम गांव गांव में, छोटे छोटे विलेजेस में जाके हमारे जीप में से अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। अगर आप सही समझते हो तो आप भी आ जाओ और हमारे साथ में चलो, और आप आपकी ए के बारे में बात करो, ए के कार्यक्रम के बारे में बात करो। जो रिहैब में आने जैसी स्थिति में रहेगा वो रिहैब में जाएगा, जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं है रिहैब में जाने की, वो आपके साथ में फ्री में ए में आएगा। दोनों का काम हो जाएगा। ये हम लोग काम सहकार्य से नहीं कर सकते क्या? तो इस विषय पर भी काफी बहस हुई थी, और एक ही मुद्दा निकला कि हम जाएंगे वो रिहैब सेंटर के गाड़ी में, वो गाड़ी के ऊपर वो रिहैब सेंटर का नाम लिखा होगा, वहां पर वो लोग छाती तान के अपने रिहैब सेंटर के बारे में बात करेंगे और उसके ट्रीटमेंट और उसका इफेक्टिवनेस और उसकी गारंटी के बारे में बात करेंगे। वेराज हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस का उन्हीं के साथ में खड़े होके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। इसका कंफ्यूजन तो 100% होने वाला है। ये गांव वाले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है और ये क्या है। दोनों साथ में तो आए हुए, दोनों सेम ही बात करते हैं, दोनों के अनुभव कथन भी सिमिलर ही है, दोनों अलग अलग नंबर्स दे रहे हैं, लेकिन उसका मतलब क्या, दोनों एक ही होंगे ना। तो ऐसे समय पर हमने निर्णय लिया था कि नहीं, हम अपने आप से अपना अपना अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, और रिहैब सेंटर्स ने अपने आप अपना अपना रिहैब अपना अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना चाहिए। दोनों को साथ में आने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत सारे रिहैब्स है जो एए के बहुत अच्छे मित्र है। जैसे उनका महीना, 2 महीना, 3 महीने का प्रोग्राम हो जाने के बाद में वो जरूर बताते हैं कि आप अवश्य ए में जाइए। अगर बची हुई जिंदगी आप शराब से दूर रहना चाहते हैं तो आपको 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम करना चाहिए, ए का स्पॉन्सर लेना चाहिए, और ए की मीटिंग्स करना चाहिए। ये बहुत सारे रिहैब सेंटर्स में बताया जाता है। और जैसे वो उनके साथ में हमारे संबंध अच्छे होते हैं, कई बार वहीं से डिस्चार्ज होके आए हुए मेरे जैसे सदस्य होते हैं, तो वो लोग भी उनको ग्रेटिट्यूड होता है, तो उनको ऐसे लगता है कि भाई अच्छा है उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा, तो मैंने भी किसी ना किसी को वहां पर भेजना चाहिए। और फिर मैं भी बताने लगता हूँ कि जैसे वो लोग ए में भेजते हैं, वैसे मेरे पास कोई आता है और मेरे को बोलता है कि अरे मुझे हमारे भाई को, बेटे को रिहैब में डालना है, आप सजेस्ट करिए कौन सी रिहैब में। फिर मैं भी वो रिहैब का नाम बताने लगता हूँ। तो यहाँ पर भी हम लोग किसी को रेफर नहीं करते, किसी को एंडोर्स नहीं करते। ये सेंटर अच्छा नहीं है, ये सेंटर अच्छा है, ये इधर ज्यादा पैसा लेते हैं, इधर मारते हैं, ये सब चीजें हम लोग नहीं बात करते। हम लोग यही बोलते हैं कि सभी सेंटर्स का काम एक ही है।
आपको शराब से दूर करना, लेकिन जिंदगी भर दूर रहने के लिए आपको उसके बाद में भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में तो आना ही है। तो आपके चहेते, आपको जो बजट ठीक लगे, आपको जो सुविधा ठीक लगे, जो लोग ठीक लगे, ऐसे किसी भी रिहैब सेंटर में आप ले जाइएगा। और बाद में जब भी उनकी ट्रीटमेंट पूरी हो जाएगी तो उनको जरूर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ले आइएगा। हम लोग इसी प्रकार से बात करते हैं। वी अवॉइड, हम लोग किसी भी प्रकार की एंडोर्समेंट करने का हम लोग अवॉइड करते हैं। और तीसरा अनुभव मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ये बहुत साल पुराने की, लगभग 1990 के आसपास की बात है, जब भी इंडियन ऑयल ने अन्नू कपूर के साथ में फिल्म बनाई थी पहला कदम, जहां पर एक शराबी की घर की अवस्था और उसकी हालत और वहां से फिर उसका ठीक होना, ये सब चीजें दिखाई थी। और यहाँ पर तो उनके जो पीआरओ थे उन्होंने हमको अप्रोच किया था कि हम भारतवर्ष में लाखों पेट्रोल पंप, और उसके हर पेट्रोल पंप के ऊपर हमारे बड़े बड़े होर्डिंग्स है, और अगर आप चाहो, ये वो हर इसके ऊपर ये पहला कदम का पोस्टर्स लगा हुआ था, और अगर आप चाहो तो वहां पर हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम डाल सकते हैं कि अगर आपसे शराब नहीं बंद होती है तो जरूर अल्कोहलिक्स एनोनिमस ट्राई करें। इस प्रकार का जाहिरात जैसे हम लोग वहां पर वो हर पेट्रोल पंप के हर एक होल्डिंग के ऊपर लगाएंगे, इतना बड़ा पब्लिक रीच शायद हम किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते थे। हमारे सामने वो चैलेंज था। और वो टाइम का जो हमारा फर्स्ट जनरल सर्विस बोर्ड जो था हमारा 1987 से लेके 1992, ये पहला जनरल सर्विस बोर्ड था, उनके सामने ये प्रपोजल आया था और उन्होंने यही विचार किया था कि ऐसा करने से लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, उनको लगेगा कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये शायद इंडियन ऑयल का सीएसआर प्रोग्राम है, और अन्नू कपूर और ये सब जो है वो हमारे ये मेंबर्स है। तो कई प्रकार के ट्रेडिशन का इसमें भंग हो सकता है, अनामिकता के ट्रेडिशन का भंग हो सकता है, एफिलिएशन के ट्रेडिशन का भंग हो सकता है, एंडोर्समेंट हो सकता है, और जाहिरात, ये तो क्लियर कट एडवर्टाइजिंग होगी। तो इन सभी मुद्दों को मध्य रखते हुए वहां पर हम लोगों ने ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इम्प्लाइड एफिलिएशन, कि भले हमारा कुछ भी एक दूसरे के साथ में जुड़ा नहीं है, फिर भी लोगों की नजर में ये संयुक्तिक जो कार्यक्रम है, ये शायद उनको लगेगा कि ये एक ही है, और इसलिए हम लोग ने, भले ये बहुत टेम्पटिंग कार्यक्रम हो, हम ऐसे प्रपोजल्स को स्वीकार नहीं करते हैं दोस्तों। तो क्विकली ये रही हमारी ट्रेडिशन 6। क्विकली मैं आपको सवाल कुछ आपके सामने लिखना चाहता हूं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने देखे थे ट्रेडिशन चेकलिस्ट के कुछ सवाल, तो यहाँ पर भी है। पहला सवाल है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी नॉट गेट इन्वॉल्व इन आउटसाइड एंटरप्राइजेस? ये क्यों महत्वपूर्ण है कि हमने बाहर के झमेलों में उलझना नहीं चाहिए? दूसरा सवाल, इज इट एवर वाइज फॉर अ ग्रुप टू लीज अ स्मॉल बिल्डिंग और एंडोर्स एन आउटसाइड इवेंट? तो क्या हम लोग एक आधी बिल्डिंग लीज पे ले ले, मतलब भाड़े से ले ले, और फिर वो भाड़े का खर्चा हमारे ऊपर ले ले, और बाहर के कार्यक्रमों को हम लोग रेकमेंड करें कि अरे भाई ये अल्कोहलिज्म पे बहुत अच्छा स्पिरिचुअल स्पॉन्सर, स्पिरिचुअल बात करते हैं, आप जरूर जाइए। तो हम लोग क्यों नहीं करते हैं? आर ऑल द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ आवर लोकल क्लब हाउसेस फैमिलियर विद गाइडलाइंस ऑफ क्लब which is available free from GSO? तो जो लोगों को ये क्लब हाउसेस, ये जिन्होंने पहली बार सुना और इसके बारे में ज्यादा जानकारी उनको चाहिए, तो हमारी AA गाइडलाइंस आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम aa.org, फ्री डाउनलोड है। या हमारे GSO इंडिया में से वो गाइडलाइंस की किताब आपको खरीदी भी कर सकते हैं आप। और उसमें क्लब हाउसेस की गाइडलाइंस आपको दी हुई कि अगर आपको इस प्रकार का क्लब हाउस बनाना है और फिर भी ट्रेडिशन 6 का वायलेशन नहीं करना है, तो आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चौथा सवाल है, शुड द सेक्रेटरी ऑफ आवर ग्रुप सर्व ऑन द मेयर्स एडवाइजरी कमिटी ऑन अल्कोहलिज्म? तो हमारे समूह का, अभी समझो पूषण को अगर मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने बुलाया
कि भूषण भाई आप हमारा जो अल्कोहलिज्म का जो एजेंडा है, नशा मुक्त अभियान के अंदर आप आओ, इधर काम करो, तो भूषण वैयक्तिक रूप से वहां पर काम कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि रिवाइवर ग्रुप का सेक्रेटरी जो भी रहेगा वो ये अभियान का चेयरपर्सन रहेगा, तो एए एज अ ग्रुप हम लोग ये नहीं कर सकते। तो ग्रुप सेक्रेटरी या ग्रुप चेयरमैन या ग्रुप प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का ऐसे पोजीशंस को स्वीकार नहीं कर सकता है। तो वैयक्तिक तौर पर भूषण के अधिकार अलग है, लेकिन भूषण जब ग्रुप सेक्रेटरी करके काम कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आएंगे। और अंतिम सवाल है, आवर ग्रुप्स लैंडलॉर्ड इज रेजिंग मनी to pay for a new roof on the building. Should the group make a contribution? What if the landlord specifically asks the groups to make a contribution? एक स्टोरी बताना चाहूंगा क्विकली और खत्म करना चाहूंगा। हम जिस जगह पर होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में हमारी मीटिंग चलती है रिवाइवर समूह की, तो हर साल सालाना अंत में हमारे एनिवर्सरी के दिन हम लोग जाके कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं या फ्रूट्स लेके जाते हैं, या हमारा जो ग्रेटिट्यूड है वो व्यक्त करने के लिए हम लोग जाते हैं, या कभी कभी हम लोग छोटा मोटा कुछ कंट्रीब्यूशन भी दे देते हैं जो कि स्कूल के किसी ना किसी काम आ जाए। लेकिन एक बार हमारे यहाँ पर एक प्रिंसिपल आई और उन्होंने हमको बोला कि हम स्कूल में फ्लावर गार्डन बना रहे, बटरफ्लाई गार्डन बना रहे, और आपके ग्रुप ने 25,000 रुपया देना है। अब बड़ी समस्या निर्माण हो गई कि हमने उनको बताने का प्रयास किया कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये में आता है, वो 10-10 रुपया आता है, और वो एक ही सेवा में दूसरे पीड़ित शराबी तक संदेश वहन के लिए ही वो इस्तेमाल हो सकता है, और ये पैसा हम लोग दूसरे किसी कारणवश नहीं यूज कर सकते। लेकिन जब भी हमने ग्रुप की बिजनेस मीटिंग में डिस्कस किया तो हमने सोचा कि ये क्या जरूरी है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस के किटी बॉक्स में से ये पैसा जाना चाहिए? नहीं। लेकिन वैयक्तिक रूप से हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के ये जो स्कूल की अपेक्षा है हमसे, ये हम लोग पूरा कर सकते हैं। और हम लोगों ने वही किया दोस्तों। कुछ चंद सदस्यों ने ये पैसे इकट्ठा किए और स्कूल को हमने दे दिए, क्योंकि वो स्कूल की प्रिंसिपल को सब ट्रेडिशन समझाते बैठेंगे तो उसको लगेगा हम बहाना कर रहे हैं पैसा नहीं देने के लिए। तो हम अपनी जगह भी बचाना चाहते हैं, लेकिन हम ए का 10-10 रुपया 5-5 रुपया करके आया हुआ किटी बॉक्स का पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए का संदेश वहन करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसका उपयोग हम लोग किसी भी नॉन ए पर्पस के लिए नहीं कर सकते। इसके लिए ये पैसा हम लोग यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किए, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन में हम लोगों ने वो दे दिया। तो इसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग मेरा जो इंडिविजुअल फ्रीडम है और ग्रुप का लिमिटेशन है, ये दोनों को समझकर उसमें से डिफरेंशिएट करके ग्रुप को सभी प्रकार के पैसा प्रतिष्ठा पावर वाली सिचुएशन से अलग और अलिप्त रखना, इसका ये ट्रेडिशन का महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मुझे बोलने के लिए मौका दिया, आप सब लोगों ने शांतिता से सुन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं समझता हूं कि मीटिंग का समय हो चुका है, लेकिन ओवर टू यू चंदू। थैंक यू भूषण। जहाँ तक मैंने कुछ मीटिंग्स में सुना था कि स्टेप्स शराबी को शराब से बचाता है और ट्रेडिशंस शराबी से ग्रुप या अल्कोहलिक्स अनोनिमस को बचाते हैं। काफी अच्छा लगा ये सुन के। दोस्तों, मीटिंग का समय हो चुका है। मीटिंग हम सैनिटरी प्रेयर लेने से पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हम हर शुक्रवार को 9 से 10:30 बजे मिलते हैं और रिवाइवल ग्रुप की अल्कोहलिक्स अनोनिमस की ऑनलाइन मीटिंग में। तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त और ट्रेडिशन 7 पे चर्चा करेंगे।